I have explained about SQL, how to enter values, how to enter delete records in a from a table, okay, how to select, how to insert, you know, these things I have explained, and null value, okay, like operators and so on. From today we are going to discuss update command, okay. Update command basically is used to update a record, okay. If you want to update a record, then you will use update command, okay. Update command basically work on all except like some type of changes in a table permanently, okay, or some, if suppose that the value is left null or any column you have added and that is blank, or any type of a thing that you want to add in the table, in that case you can use update command. Some examples. First of all, see the syntax. You will use update first, update command, then table name. This is the table name, whatever, like we are using TB1, okay. Then set is also a command. Set says the value which you are going to set, okay. Then column name in which you are going to change, this is the column name, okay. Then expression means what change you want, the basic change. First you will write which you will going, which the main change you want, okay, from this column, this change. Suppose that I want to change my name from Radhelal to Shyamlal or Biharilal, then this is the expression, and column name is a e name we are using. So we are here where we will give the condition, cause on by using only column name it will give error, okay. तो यहाँ पे हमने कहा कि स्टूडेंट इस कंडीशन, देन यू विल गिव द कंडीशन कि इस प्लेस पे चेंज होना है, ठीक है। नाउ सी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट स्टूडेंट अपडेट करना है, सेट क्लास इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ये सभी कॉलम में क्लास 10 सेट कर देगा. इट विल रिप्लेस ऑल द कॉलम्स विद द वैल्यू, ओके, विद वैल्यू 10. हाँ, अरे बाप रे, तो भूल गया. बोल दिया तो भाई, मैंने पढ़ा कर दिया, ठीक है. तो अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेटिंग अ वैल्यू. लाइक अभी मैंने बस इतना ही बताया है कि अपडेट कमांड जो भी होती है वो इसलिए यूज करती है. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखते हैं, अपडेट स्टूडेंट सेट क्लास 10, ओके. तो यहाँ पे हमने आई हैव नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ अ कंडीशन ओवर हियर. So if the condition I will not give, if I will not give the condition, then it will change whole column with the same value. Okay, the value which you will define first, that will change at random. Okay, whatever the value, if the value is 10 any place, then it will automatically change, but it will be as same which you have given. Same as next, update student set in f name, in father name. कॉनकेट यहाँ पे यूज हुआ है. कॉनकेट इज यूज टू ज्वाइन द टू स्ट्रिंग, मीन्स दो सेक्शन. जैसे मेरा नाम फर्स्ट नेम इज गौरव एंड सेकेंड नेम इज पांडे, ओके. तो एक ये दोनों अलग अलग कॉलम है. यहाँ पे हमने इस कॉलम का नाम है लास्ट नेम एंड सॉरी फर्स्ट नेम, एंड इस कॉलम का नाम है लास्ट नेम. तो इनको अगर हमें ऐड करना है इन दोनों नेम्स को, तो वी कैन ऐड अ नेम ऑल्सो, ओके.
you can add a name also, okay, or you can, then that is a separate value, that is not a column table value. If you want to add a column, whole column, then what you will do, you will give the column name, then you will use concat, CONACT, concat, within a bracket. Suppose that here I have added Mr. dot comma f name means column name, ठीक है. इसलिए column name में क्या ऐड करेगा, Mr. ये परमानेंट चेंज होगा, इट इज अ परमानेंट चेंज, ठीक है. सेम एज अगर हम दो कॉलम ही रखना चाहते हैं, कि जैसे यहाँ पे मैं बताया फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो इनकी प्लेस पे, यहाँ पे इसकी प्लेस पे हम लिखेंगे कॉन्कैट विद इन अ ब्रैकेट, तो ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेते हैं, वेट लगा लेना से, एफ एन, ठीक है, एफ एन कॉमा एक क्या है LN, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है, FN कॉमा LN. इन दिस केस व्हाट हैपन, कि ये फर्स्ट वैल्यू आएगी और ये सेकंड वैल्यू आएगी, ठीक है, समझना. इन दिस केस वैल्यू विल बी चेंज. नाउ अगर सैलरी अपडेट करनी है तो अपडेट इम्प्लाई सेट सैलरी, सभी की सैलरी में क्या करना है, सैलरी प्लस उसमें क्या करना है, सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट, ठीक है. सेम एज इम्प्लाइड सेट सैलरी, अब यहाँ पे देखो कंडीशन लेके, जिसकी सैलरी 10,000 से ऊपर हो उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है. तो कंडीशन हम लगा सकते हैं. यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है अपडेट एमपी सेट सिटी इज इक्वल टू देहरादून वेयर सिटी इज नल, ठीक है. अब चलो हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है. नाउ सी, टेबल हम लोग डिस्प्ले कर लेते हैं. पहले सेलेक्ट TB1. नाउ सी दिस इज द टेबल, ठीक है. अब यहाँ पे देखो जैसे वैल्यू नल है, ठीक है. सबसे पहले हम लोग नल वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है. आई वांट टू चेंज नल वैल्यू टू एनी विद एनी सिटी, ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट TB1 सेट सिटी इज इक्वल टू रामपुर where city is null. अभी दोबारा क्लिक करना पड़ेगा. Okay, use DB1, select the star from DB1, फिर अपडेट TB1 set city is equal to Rampur where city. अब हम इस सिटी की जगह नल जैसे है तो घनश्याम की जगह भी कर सकते हैं, ठीक है, कि वेयर नेम इज
घनश्याम, तो उसकी जगह भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। घनश्याम वेयर इज नल, नल, ठीक है। सिंटेक्स मैनुअल करेस्पॉन्ड्स योर, अच्छा इज नहीं लगाया ना, इज नल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, टीवी सिटी थे, अब देखो यहाँ देखो रामपुर विल डिस्प्ले, ठीक है। अब सपोज हमें किसी का नाम चेंज करना है, ठीक है, सीतामणि की जगह रीतामणि हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, हम लोग उसकी भी जगह अपडेट ही करेंगे, ठीक है, अपडेट कमांड, ठीक है, वेयर ई नेम इज इक्वल टू रीतामणि, वेयर सिटी, या जो भी कर सकते हैं वेयर, चलो दूसरी आईडी EMP आईडी ले सकते हैं, वेयर EMP आईडी इज इक्वल टू 885, ठीक है। नाउ चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, ये देखो, ठीक है, एट द प्लेस ऑफ सीतामणि इट इज रीतामणि। क्लियर, क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ सी, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अब देखो जैसे हमने कहा कि विल यूज क्रिएटिंग टेबल, तो मैं बता ही चुका हूँ, तो ये नहीं बताना मुझे। अब हम लोग कीज पे बात करते हैं। अभी तक तो हम लोग सिंपल डेटा पे काम कर रहे थे कि इसमें कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, ठीक है, अभी तक कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि हम कुछ ऐड करें, हमने जस्ट सिंपल प्लेन डेटा पे काम किया। अब हम क्वेरीज पे, कीज पे काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इन चीज को हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, जो स्पेसिफिकली उनको वो जो कंडीशंस को चेक करते हैं, ठीक है, जो हम कह सकते हैं वैलिडेशंस वी कैन पुट ऑन डेटा, दोज वैलिडेशन आर कॉल्ड constant, you can say, okay. So these constant basically work on I have already told that they increase the redundancy को improve करते हैं, improve क्या होने नहीं देते एक्चुअली। तो लिखा हुआ है an integrity constants are condition or check applicable to column or table which ensures the integrity and validity of a data, ठीक है, वैलिडिटी और इंटीग्रिटी डेटा को चेक करते हैं, कंसीडर करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट हमारा कांस्टेंट है नॉट नल, ठीक है, नॉट नल इंश्योर दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल। अगर हम सपोज दैट किसी कॉलम में नॉट नल लगाते हैं, हमने कहा कॉलम नेम एंड देन डेटा टाइप देन नॉट नल, मीन्स उस कॉलम को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, वी कांट लीव दैट कॉलम ब्लैंक इफ यू विल यूज नॉट नल विद अ कॉलम नेम, ठीक है, आफ्टर डेटा टाइप, ठीक। अगली चीज हमने बताई प्राइमरी की, यूज टू आइडेंटिफाई रो यूनिकली, ठीक है, अगर हमें कोई भी रो यूनिकली आइडेंटिफाई करनी है देन व्हाट यू विल यूज, प्राइमरी की, ठीक है, इसको हम प्राइमरी की यूज करेंगे। देन डिफॉल्ट, प्रोवाइड द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम, सपोज दैट एक हमने डिफॉल्ट यूज किया तो क्या है कि वो वैल्यू डिफॉल्ट रहेगी, मतलब
सपोज हमने कहा कि इस कॉलम में सारे ट्रू रहेंगे, सारी कंडीशंस ट्रू रहेंगी, इन दैट केस दिस इज अ कॉलम, ठीक है, उससे डिफॉल्ट बनेंगे। यूनिक ये आपके सिलेबस की में तीनों नहीं है, चारों नहीं है, बल्कि फॉरेन की भी नहीं है, ठीक है। डिफॉल्ट यूनिक इंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट, मैं बता दे रहा हूँ बस, ठीक है, क्योंकि कोई अगर पूछे कि डिफॉल्ट पढ़ा है तो आप बता सकते हो कि डिफॉल्ट होता क्या एक्चुअली। डिफॉल्ट वैल्यू मतलब पूरे कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू आपको डिफाइन करनी होती है, मतलब बता डिफाइन करनी है, देन यू कैन यूज डिफॉल्ट। यूनिक इंश्योर दैट वैल्यू इन अ कॉलम आर डिफरेंट, ठीक है। अब अगर हम यूनिक देते हैं तो जो कॉलम्स होंगे, जो कॉलम होगा उसमें सारी वैल्यूज डिफरेंट रहेंगी। एंड चेक, अगर हम कोई कंडीशन लगाते हैं कि चेक दिस वैल्यू शुड बी लेंथ इज इक्वल टू दिस, ऐसे करके, ठीक है, तो इंश्योर द वैल्यू कॉलम शुड सेटिस्फाई द सर्टेन कंडीशन, कोई ये कंडीशन दी जाएगी, उस कंडीशन पे वो वैल्यू सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। फॉरेन की यूज टू इंश्योर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, जब हम मर्जिंग करते हैं दो टेबल्स की, दो कॉलम्स की, सॉरी दो टेबल्स की, देन विल यूज फॉरेन की। जैसा मैंने बताया था कि एक कॉलम एक टेबल की जो की होगी, एक टेबल की जो प्राइमरी की होगी, दैट शुड बी अ टेबल, सेकेंड टेबल की वो फॉरेन की हो सकती है, ठीक है। अब देखो इनकी इम्प्लीमेंटिंग जैसे हम बताते हैं, तीन हमारे में है, नॉट नल, प्राइमरी की और यूनिक की, ठीक है। यूनिक भी नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज करते हैं, एक एग्जांपल देखो आप, सारे डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे दिस कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई द कॉलम मस्ट नॉट कंटेन नल वैल्यू, वैल्यू ऑफ फॉर द कॉलम मस्ट बी गिवन मैंडेटरी, ठीक है। दिस कंस्ट्रेंट डिक्लेयर अ कॉलम एज द प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की होगी, सिंस प्राइमरी की मस्ट नॉट हैव नल वैल्यू, तो इट इज यूज टू नॉट नल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली नॉट नल हो जाएगी अगर हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं, तो यू कांट लीव ब्लैंक दैट कॉलम, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिक की। दिस कांस्टेंट इंश्योर दैट द वैल्यू फॉर द column should be unique, that is no two records have the same, मतलब दो सेम डिफरेंट रिकॉर्ड सेम नहीं हो सकते, मतलब डुप्लीकेट को डुप्लीकेट नहीं हो सकते। तो सपोज मेरा नाम गौरव है, तो अगर हमने नेम को यूनिक बना रखा है, तो नेम की सारे नेम्स डिफरेंट होने चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसलिए प्रैक्टिकली हम ऐसा नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्रिएट टेबल स्टूडेंट, ठीक है। स्टडी कोड कैरेक्टर, इतना तो आप बता ही चुके हैं। अब हमें लिखा हुआ है नॉट नल प्राइमरी की, ठीक है, नॉट नल प्राइमरी की, ठीक है। तो अगर हम इसको सिर्फ प्राइमरी की भी दे देंगे ना, देन ऑल्सो इट विल वर्क। तो यहाँ पे चाहे आप नॉट नल यूज करें या एक प्राइमरी की यूज करें, इट वर्क। देन स्टूडेंट नेम कैरेक्टर 20 नॉट नल, इसको भी ब्लैंक नहीं कर सकते मीन्स दैट इज अ मैंडेटरी फील्ड दैट यू विल इंटर। फिर हमने लिखा स्टूडेंट एड्रेस, दैट इज नॉट मैंडेटरी, वेयर कैर 40। हमने दिया एडमिशन नंबर कैरेक्टर यूनिक, इसको हमने यूनिक कर दिया, ठीक है। फिर स्टूडेंट एज इंटीजर चेक, ये यहाँ पे चेक यूज किया है। बैक में लिखा स्टेज स्टूडेंट एज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यूनिक और प्राइमरी की क्या कोई डिफरेंस पूछता है, तो यूनिक ऑलवेज नल वैल्यूज बट प्राइमरी की डज नॉट, ठीक है। यूनिक में हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है, यू कैन लीव द वैल्यूज कॉलम ब्लैंक, रिकॉर्ड ब्लैंक फॉर दैट टेबल, बट इन प्राइमरी की वी कांट, ठीक है। अगर हम प्राइमरी की अगर यूज कर रहे हैं उसकी जगह, देन यू कांट लीव द कॉलम ब्लैंक लाइक दिस ओनली। समझ में आया? क्लियर नॉट? ठीक है। तो ये 2 नंबर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिक एंड प्राइमरी की, ठीक है।
इसका यूनिट का कभी यूसेज नहीं पूछा जाएगा, मतलब प्रैक्टिकली नहीं पूछा जाएगा। रीजन बिहाइंड कि इट इज नॉट अ सिलेबस, बट हाँ कॉन्स्टेंट्स बताए जाते हैं तो थेरेटिकली ये पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। ठीक है, क्रिएट टेबल ये तुमने बता दिया, नॉट नल ये नॉट नल ये बता दिया। डिफाइनिंग प्राइमरी की एट टेबल लेवल। ठीक है, अगर हम टेबल लेवल पे प्राइमरी की डिफाइन करते हैं, जैसे टेबल लेवल मतलब आफ्टर ऑल कॉलम डिफिनीशन, मतलब अगर हमें सारे कॉलम, हमने जैसे यहाँ पे डिफाइन किया कि हमने एक कॉलम डिफाइन किया उसके बाद प्राइमरी की डिफाइन करी है। ठीक है, उसी में एट द टाइम ओनली, यहाँ पे क्या हमने सारे कॉलम डिफाइन कर दिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट में प्राइमरी की क्या होगी, एसटी कोड, मतलब ये वाला एसटी कोड यहाँ हमने लास्ट में डिफाइन किया है। दैट मीन्स वी हैव डिफाइंड अ कॉलम आफ्टर टेबल क्रिएशन, मीन्स हमने पूरा टेबल का क्रिएशन जो सिंटैक्स है query है कंप्लीट कर ली। आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड टू राइट, आफ्टर एट लास्ट वी हैव रिटन द प्राइमरी की विच, ऐसे केसेस में तो बोलते हैं कि डिफाइनिंग प्राइमरी की एट द टेबल लेवल। ठीक है, और ये क्या है, डिफाइनिंग प्राइमरी की एट द कॉलम लेवल। अभी एक और बताएंगे बाद में, डिफाइनिंग प्राइमरी की आफ्टर क्रिएशन ऑफ अ टेबल, आपने डेटा भी इंसर्ट कर दिया, देन यू विल डिफाइन प्राइमरी की ये कॉलम डिफाइन हो, तब भी हम ऐसा कर सकते हैं, उसके लिए हम बताएंगे। A composite multi-column primary key can be defined as only a table level, whereas single column primary key can be defined as in both ways, column level और table level। ठीक है, दोनों तरीके से हम टेबल और कॉलम को डिफाइन कर सकते हैं। समझ में आया? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? देखो हैंडलिंग टेबल्स, यहाँ पे 3 टेबल्स आएंगे, डिस्क्राइब मैं बता चुका हूँ। ठीक है, डिस्क्राइब ऑलरेडी आई हैव टोल्ड, तो डिस्क्राइब टेबल नेम। ठीक है, डिस्क्राइब और टेबल नेम, तो आर आई भी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, तो हम लोग डी ई एस टी ही यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रैकेट में डिस्क्राइब भी यूज कर सकते हो, पूरा ऐसे ऐसे डिस्क्राइब देन टेबल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे भी यूज कर सकते हो, ऐसे भी यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, इफ यू वांट टू डिलीट अ टेबल, अगर आप टेबल डिलीट करना चाहते हो कंप्लीट टेबल, देन ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, अगर होगी। ठीक है, देन टेबल नेम। ठीक है, टेबल नेम ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी, टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, क्रिएशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नाउ सी मॉडिफाइंग, पहले हम ये वाला काम कर लेते हैं, प्राइमरी की समझते हैं, फिर हम लोग मॉडिफाई करना देखते हैं। नाउ सी, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें एक प्राइमरी की क्रिएट करेंगे। ठीक है, विल क्रिएट अ प्राइमरी की ऑन द बेसिस ऑफ न्यू टेबल। ठीक है, हाउ टू लर्न, लेट्स सी। अरे भाई, क्रिएट टेबल tb3 चलो लेते हैं। यहाँ पे हमारा फिर क्या था टेबल नेम, emp id, emp id को हम प्राइमरी की बनाते हैं, emp id। ठीक है,
इंटीजर ब्रैकेट में 5 का साइज हो गया, मैंने इसको दिया प्राइमरी की। भाई चलो प्राइमरी की, देन हम कॉमा लगाएंगे नेक्स्ट कॉलम के लिए। फिर देंगे सब्जेक्ट या स्ट्रीम कह सकते हैं, स्ट्रीम। फिर हम देंगे इसका स्ट्रीम का हम लोग टाइप बताएंगे, डेटा टाइप क्या हो सकता है, कैर। इसका भी साइज दे दो 10, ठीक है, तो हो गया, ठीक। फिर इसके बाद हो गया ENR नंबर, ठीक है। ENR नंबर इसने लिखा तो हमने इसको दे दिया IM, इंटीजर ही देते हैं, इंटीजर ब्रैकेट में 10 और फिर इसको नॉट नल कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू हमें डालने पड़ेगी, ठीक है। फिर हमने दिया डेट, अभी डेट नहीं यूज किया था ना हम लोगों ने, DOB कर लेते हैं, DOB डेट, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। टेबल क्रिएट हो गई, ठीक है। सॉरी, हाँ ये तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना। शो टेबल, शो टेबल, ठीक है। शो टेबल 3 टेबल्स क्रिएट हुई हैं, एक में तो अभी वैल्यू नहीं रही थी, कल एरर आ रही थी उसकी वजह से। नाउ 30VC देखते हैं हम लोग, इसका डिस्क्राइब करते हैं टेबल टेबल को, DASC TB3, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके का बना है, ठीक है। अब देखो इसमें लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप गौर फरमाएं तो EMP ID इंटीजर है, नो, ठीक है, नल आप छोड़ नहीं सकते, प्राइमरी की है, ठीक है, इट इज अ प्राइमरी की, एंड डिफॉल्ट वैल्यू नल। स्ट्रीम कैर 10, यस यू कैन लीव नल, मतलब ब्लैंक छोड़ सकते हो आप, ये कोई की नहीं। एनरोलमेंट नंबर इंटीजर 10 है, इसको भी आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते बिकॉज इट इज नॉट नल। DOB डेट, यस यू कैन लीव ब्लैंक, ठीक है। अब हम इसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, insert into TB3 values, ब्रैकेट में EMP ID तो हमने डाल दिया, सपोज दैट उसी में से लेते हैं, अगर फ्यूचर में हम ज्वाइन पढ़ेंगे तो वो भी हम वही लेंगे, क्या लेगा, 879 कॉमा स्ट्रीम में लिया साइंस, इसको हमें करना पड़ेगा ब्रैकेट में, कोट्स में, सॉरी, साइंस, चलो PCM लिखते हैं, PCM, कीबोर्ड की बैटरी डाउन हो गई, PCM, देन क्या है, एनरोलमेंट नंबर 16282 है, 16 क्या 1000 से ले लेता है, चलो अच्छा। अरे भाई ठीक है। फिर है DOB, DOB को भी हमने बताया था किसमें रखेंगे, ओहो क्यों मेरा कीबोर्ड क्या कर रहा है, 012 डैश 15 देन 10, ठीक, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एरर बाय DDNM, YY DDNM, 1,
एक वैल्यू, YY MMDD होता है ना। का बहुत ध्यान रखना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है, डेट कॉन्सेप्ट पे। चलो अब इसमें चेंजेस कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। एक और वैल्यू डाल देते हैं, इसको कर लेते हैं 1, इसको कर लेते हैं 13, कर लेते हैं इसको कर लेते हैं 1, इसको कर लेते हैं B। अब देखो, अगर हम ये वैल्यू हमने प्राइमरी के लिए हुई है, अब हमें 879 डालेंगे, एरर देगा कि इट विल डुप्लीकेट, ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री, ठीक है। तो हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हमारी प्राइमरी की नहीं है, सॉरी है, दे देते हैं 80, ठीक है। वैल्यू इंटर हो गई, फिर हमने लिया इसको, चलो कर लेते हैं 18, तो कर लिया 2, तो ये लेते हैं और इसको कर लेते हैं 1, ठीक है। अब हम टेबल देखते हैं, DB 3, ठीक है। हम देखते ये एंट्री हो गई, ठीक है। समझा? नहीं आया? एंट्री इज क्लियर और नॉट? हेलो, ओके। नाउ अब बात करते हैं कि जैसे हम लोग अगर टेबल हमने जैसे यहाँ बताया प्राइमरी की हमने पहले बनाई विद कॉलम वैल्यू, ठीक है। अगर हम कॉलम वैल्यू के अलावा जैसे हमने अगर कोई टेबल देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने प्राइमरी की ऐसे डाली हुई है, ठीक है, ठीक, तो वैल्यू ऐसे डाली हुई है। हम यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे जैसे वहाँ पे दिखने जा रहा है, मैंने एंटर किया, डेटा हमने क्लोज किया, ठीक है। डेट का सारे बन गए, ठीक है। हम चाहते हैं कि इनरोलमेंट को प्राइमरी की बना दें या EMPID को बनाने प्राइमरी की बना दें, तो इन दैट केस हम सिंपल ऐसे लिखेंगे प्राइमरी की विद इन अ ब्रैकेट क्या होगा EMPID। अब ये टेबल डुप्लीकेट बताएगा, रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये टेबल बन चुकी है ऑलरेडी, टीवी 4 पर लेते हैं यार। अब नहीं होगा, दोबारा क्रिएट करते हैं एक छोटी सी टेबल, क्रिएट टेबल TD4, ठीक है। हमने यहाँ पे छोटे से कॉलम देते हैं EM इंटीजर ब्रैकेट 10 ले लिया, साइज सामने, नेम, दो ही का कॉलम बनाते हैं, नेम वैर कैरी लेते हैं इसको, ठीक है। 5, और फिर यहाँ पे हमने दिया प्राइमरी की क्या होगी ब्रैकेट में EM, ठीक है। अब देखो ये हमने लास्ट में दिया, जितने भी कॉलम्स हमने, दो कॉलम्स जितने भी बनाने हो, लास्ट में हम विद इन अ ब्रैकेट, ठीक है, हम प्राइमरी की जो भी की होगी उसके ब्रैकेट में विद इन अ ब्रैकेट वी विल राइट अ नेम ऑफ अ कॉलम दैट यू वांट टू क्रिएट अ गिव अ प्राइमरी की, ठीक है, योर और यूज अ प्राइमरी की। देखिए अगर हम अब टेबल्स देखेंगे, SHOW शो टेबल,
ठीक है, इस तरीके से 4 टेबल्स बन गई हैं आपको एग्जिट समझ में आ गया। अपडेट क्लियर हुआ, प्राइमरी की क्लियर हुआ। ठीक है, अब हम अगर इसे ड्रॉप करना चाहते हैं, सपोज इफ वांट टू ड्रॉप टेबल, then we'll use just like drop drop and then tb2, suppose that I want to drop, so tb2 drop tb drop table, sorry table tb2। ठीक है, अब अगर आप टेबल देखोगे तो यहाँ पे tb2 गायब। ठीक है, क्लियर, आई होप टू क्लियर। नाउ सी, अब हम लोग बात करेंगे मॉडिफाइड टेबल स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे लास्ट तक हाउ टू क्रिएटिंग ऑफ अ टेबल, ऑलवेज क्रिएटिंग। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू मॉडिफाई अ टेबल। ठीक है, हाउ टू मॉडिफाई अ टेबल। ठीक है, तो इसके लिए वी विल यूज ऑल्टरेशन कमांड। ठीक है, ऑल्टर कमांड वी विल यूज। इफ आई विल से दैट ऑल्टर कमांड, हाउ वी विल यूज ऑल्टर कमांड। ठीक है, ऑल्टर कमांड विल is it is a ddl command, first thing is that, and add। ठीक है, we can add new column, remove new column, remove a column, delete column, modify column, उसका नेम वगैरह चेंज कर सकते हो, कॉलम नेम चेंज कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, इसको फंक्शनलिटी में जितनी भी चीजें आप टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हो, यू कैन चेंज नेम, डेटा टाइप यू कैन चेंज, साइज आप चेंज कर सकते हो डेटा टाइप का बाय यूजिंग ऑल्टर कमांड। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। वी यूज ऑल्टर देन टेबल, ऑल्टर टेबल सब जगह यूज होगा। फिर उसके बाद टेबल नेम, दिस इज द टेबल नेम एज गिवन। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम बात करें तो ऑल्टर टेबल इट विल बी सेम। ठीक है, ऑल्टर टेबल यहाँ पे सेम रहेगा, दिस विल सेम। टेबल नेम चेंज हो गया, सपोज दैट हम tb1 करना चाहते हैं, फिर उसमें ऐड करना चाहते हैं, क्या ऐड करना चाहते हैं, कॉलम। ठीक है, ऐड कॉलम कर देंगे। मॉडिफाई क्या करना चाहते हैं, कॉलम, तो मॉडिफाई कॉलम। फिर ड्रॉप करना चाहते हैं कॉलम या टेबल तो ड्रॉप टेबल से हो जाएगा। चेंज क्या करना चाहते हो, कॉलम का जो भी डेटा चेंज करना चाहते हो। तो इस तरीके से हम लोग ऑल्टर, टेबल और टीबी नेम सेम रहेगा। उसके बाद ये अलग अलग यूज होते हैं, ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, ड्रॉप करना है, चेंज करना है। इन दीज 4 थिंग्स विल यूज डिफरेंटली। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, लेट्स सी। कुछ यहाँ पे सिंटेक्स दिए गए हैं। ठीक है, जैसे हमें ऑल्टर टेबल कर न्यू कॉलम ऐड करना है, तो क्या लिखा हुआ है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड। ठीक है, स्टूडेंट ऐड। ठीक, अब क्या है, टैली नंबर और इंटीजर, मतलब एक कॉलम ऐड होना है जिसका नाम टैली नंबर है और इंटीजर है। क्या हुआ, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कॉलम नेम एंड देन वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू, डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप। देन ऑल्टर टेबल नेम, अगर हमें किसी कॉलम को, एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना है, सपोज उसका डेटा टाइप चेंज करना है या उसको कोई भी फॉर्मेट चेंज करना है, देन इन दैट केस ऑल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई। ठीक है, नेम varchar। ठीक है, varchar। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो सकता है डेटा टाइप चेंज हुआ हो, या कैर पहले कैर लिया गया था फिर varchar कर दिया गया। फिर यहाँ पे ऑल्टर टेबल इम्प्लाई मॉडिफाई पे। ठीक है, पे, अब यहाँ पे डेटा टाइप को चेंज कर दिया गया, डेसिमल 10,2। ठीक है, फिर मॉडिफाई हो गया। देन ऑल्टर टेबल नेम कॉलम, स्टूडेंट ड्रॉप कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉप कॉलम नेम, उस टेबल को जो कॉलम नेम हमने बनाया था दैट विल बी ड्रॉप। ठीक, और देन अब 2 कॉलम, मल्टीपल कॉलम भी ड्रॉप कर सकते हैं। ऑल्टर टेबल इम्प्लाई ड्रॉप टेबल नेम, ड्रॉप फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ड्रॉप सेकेंड कॉलम। हम ड्रॉप दोनों के साथ, ड्रॉप जॉब कॉमा ड्रॉप पे, दोनों अलग अलग के साथ ड्रॉप यूज करेंगे। समझे? ठीक है, अब इसको इधर करके देख लेते हैं फटाफट।
ठीक है। नाउ ठीक है, अब सपोज हमने कहा टीवी 3 या टीवी 4 जो भी लेना चाहें, ठीक है, हम कोई एक टेबल ले लेते हैं, ठीक है, इसमें से ये कॉलम है, ठीक है। तो ना अब सपोज दैट इफ आई वांट टू चेंज द कॉलम नेम ऑफ स्ट्रीम से हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट ले लें, ठीक है, स्ट्रीम का कॉलम नेम चेंज करना आता है, या फिर हम कॉलम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। सपोज दैट हम ऐड करना चाहते हैं, पहले देखेंगे ऑल्टर टेबल TB1 TB3, ठीक है, TB3 ऐड एड्रेस ब्रैकेट एड्रेस varchar 20, ठीक है। अब देखो टेबल देखी जाए, ठीक। अब यहाँ देखो वैल्यू नल आ रही है, ठीक है। अब इन नल वैल्यू करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपडेट कमांड यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। विल यूज अपडेट कमांड फॉर एडिंग चेंजिंग ए वैल्यू, ठीक है। तो अपडेट कमांड तो आपको पता ही है, अपडेट कैसे करेंगे लिख के बताऊं, अपडेट TB3 set address is equal to इंदिरा नगर ठीक है, वेयर। अब अगर हम इंदिरा नगर सब ऐसे कर देंगे, एक में सब में यही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम सब में इंदिरा नगर कर देंगे तो ऐसे छोड़ दें, अगर सेट एड्रेस इज इक्वल टू इंदिरा नगर, ठीक है, तो सब में इंदिरा नगर हो जाएगा। अगर हम एक एक करके चेंज करना चाहते हैं, वेयर स्ट्रीम इज इक्वल टू PCB, हमने PCB किया है, तो जहां भी PCB होगा वो इंदिरा नगर के सारे बच्चे हैं, PCB। कुछ प्रॉब्लम है, स्ट्रिया हो गया, STR SLM, ठीक है। नाउ सी अगेन टेबल, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉलम ऐड कर लिया, ठीक है। समझ मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई कि हमने कॉलम ये ऐड कर लिया, ठीक है, न्यू कॉलम ऐड कर लिया, ठीक है। अब अगर एग्जिस्टिंग कॉलम आपको मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो मॉडिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर टेबल, यहाँ पे आप यूज कर लें मॉडिफाई, ठीक है। इसमें आपको फर्क नहीं पता चलेगा, मॉडिफाई स्ट्रीम, क्योंकि इसका हम कॉलम नेम varchar से कैसे चेंज करेंगे, varchar ठीक है। 3 रोज अफेक्टेड, मतलब 3 रोज में डेटा टाइप चेंज हो गया, ठीक है। तो ये मॉडिफाई हो गया। फिर क्या है, ड्रॉप कॉलम, ठीक है, कॉलम कॉन्स्टेंट में ड्रॉप करना है, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, यू कैन यूज ऑल्टर ड्रॉप स्ट्रीम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो टेबल का स्ट्रक्चर, ठीक, ड्रॉप हो गया, एनरोलमेंट नंबर ड्रॉप, DOB एड्रेस वगैरह ड्रॉप हो गया, समझे। अब बात करेंगे हम लोग अगली बार इनमें और भी चेंजेस करने की, ठीक है। अब चेंजेस के अब मेन हम लोग मेथड पढ़ेंगे, फंक्शंस और मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, जो हमारे सिलेबस
का भी एक पार्ट है, और 12th में भी वही चीज़ें हैं, और 11th में बेसिक उसका है, ठीक है। लेकिन आप पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज़ है, आपका 12 कवर अप हो जाएगा फॉर टिल क्लास 12, ठीक है। अभी एक टॉपिक में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ज्वाइनिंग, क्योंकि वो 12th का पार्ट है। बाकी फंक्शंस और मेथड्स जो हैं वो आपको 11th में हमने इन लोगों को भी पढ़ाए थे, तो आप लोगों को भी पढ़ेगा, इन लोगों का तो एक तरीके से रिविजन चल रहा है। 12th वालों समझ में आ रहा है?